سکون سمجھ تب آیا جب رو کر سجدے سے سر اٹھایا، بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دی جاتی۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ خدا کسی کو لا حاصل کی چاہت میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جس کے لیے تم رو رہے ہو وہ بس تمہاری دعا کے نزدیک ہو۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں۔ مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہیں۔ درد جب روح میں ہو تو دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اللہ دے گا بہتر نہیں بہترین دے گا۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہو۔ اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے۔ محبت کرنے والا شخص بدکار نہیں ہوتا۔ صبر کیجئے اور نماز سے کام لیجئے۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ جب دل کو لگتی ہے تب ہی دل اللہ سے لگتا ہے۔ بہترین وہ راستہ ہے جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو۔ تباہی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لیے، اور جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے ہو۔ ماں باپ کے علاوہ ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ فجر تو اللہ سے وفا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو سجدے بوجھ نہیں لگتے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ محبت ہو جاتی ہے پر محبت مل نہیں پاتی۔ قرآن مجید کی تلاوت ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ صرف اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے کی لگن رکھو۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، تم بس ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ بس ایک اللہ راضی ہو جائے، دنیا کا تو معیار بدلتا رہتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی آپ کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنی قدر خود کیجئے۔ حل سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوتا ہے۔ نہ کوئی تمہارا اللہ کے سوا سچا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ خود کو قیمتی سمجھو، کیونکہ اللہ کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کرتا۔ میں نے اپنے اللہ کو ہر مشکل میں قریب پایا ہے۔ لوگ ہمیشہ بد دعا سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں ڈرتے، اور بے شک اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کو نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ ہر نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو۔ نہ ہونے کا احساس تو سب کو ہے لیکن موجودگی کی قدر کوئی نہیں۔ کاش ایسی بھی کوئی ہوا چلے، کون کس کا ہے پتہ چلے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ رزق ہو یا محبت، اگر قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائے۔ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے
اور جو اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کپڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ مطلب ہونے تک شہد ورنہ زہر ہیں لوگ۔ انسان کی انسانیت ختم تب ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ لوگ آپ کو زندہ مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا۔ پچھتاوے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھنا بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی پرانی باتیں اور پرانے دوست بہت یاد آتے ہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تعلق روکا ہو تو دل بھرا نہیں کرتے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے ناراض ہو کر بھی انہی کی فکر رہتی ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور یہی حقیقت۔ کسی سے صرف اتنا ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں پہ سکون لٹایا ہو۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے، لوگ باز نہیں آتے۔ ایمان یہی ہے کہ صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ سب سے خطرناک بیماری اچھی یادداشت ہے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہوتی ہے۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ چلنے دیتی ہیں۔ صبر رکھو، آنے والا کل خوبصورت ہوگا۔ اگر سب مل گیا تو تمنا کس کی کرو گے۔ حیا کے پردوں میں لڑکی ہر روپ میں خوبصورت لگتی ہے۔ زندگی اتنی سستی نہ بناؤ کہ 2 ٹکے کے لوگ کھیل کے چلے جائیں۔ محبت اور موت پورا انسان مانگتی ہیں۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ انسان کے خیالات ہی اس کا مقدر ہوتے ہیں۔ نصیب ہار جاتے ہیں تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ اور پھر کیا ملا لوگوں سے مخلص ہو کر؟ غافل ہیں، لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں۔ ہر ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یا رب بے داغ رہے جوانی ہر لڑکی کی۔ بڑی مختصر کہانی ہے یہ جو زندگانی ہے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ جلدی یا دیر سے لوگ بدلتے ضرور ہیں۔ قرآن مختصر قصہ ہے خدا اور بندے کی محبت کا۔ کچھ وقت اللہ کو دینے سے خود کا وقت بدل جاتا ہے۔ کبھی جو دعاؤں سے نہ مل سکے وہ صبر سے مل جاتا ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہی ہمیں الحمدللہ کا سبق دیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ اگر محبت ہو تو پہلے خدا سے۔ جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو تو انسان بے چین نہیں ہوتا۔ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں تو داغ ضرور لگتا ہے۔ کہانیاں پڑھ لی جاتی ہیں پر سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خاموشی ہر فضول بات کا بہترین جواب ہے۔ سمجھدار لوگوں کے ساتھ الجھا نہیں کرتے۔ نظر اپنی خامیوں پر رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے گہرے الفاظ جس سے کوئی نہیں پڑھ سکا کچھ نہیں۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ اپنی ہی سوچوں سے بڑی کوئی اذیت نہیں۔ اللہ ہی انسان کا وفادار دوست ہے۔
गिरता मैं खुद हूँ, संभालता मेरा अल्लाह है। कुछ फासले यूं ही बरकरार रहने दो, हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश नहीं होता। दूसरों का एहसास करना ही जिंदगी है। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक ही रखा, वो जल्द ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। माँ बाप का होना किसी खजाने से कम नहीं। खामोशी और उदासी कभी बेवजह नहीं होती। वक्त सब कुछ बदल देता है। हर तल्ला की हकीकत वक्त बता देता है। जो है उसकी कदर करें, शुक्र शिकवे से बेहतर है। शुक्र करो, तुम्हें और दिया जाएगा। बेटियां तो रहमत होती हैं। थके हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। दूसरों की जिंदगी आसान करें और अपनी आखिरत। अल्लाह से बढ़कर कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तकलीफ के लम्हे गुनाहों में कमी कर देते हैं। आपका इखलाक ही आपका हुस्न है। हम जलील भी अपने ही इंतखाब से होते हैं। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। मुश्किल इंसान को मजबूत बना देती है, जैसे आग लोहे को। हर इंसान खुश रहने के लिए परेशान है। बोलने से ज्यादा खामोशियां बेहतर होती हैं। माँ की मोहब्बत में दुनिया भर का सुकून है। खास होती हैं वो लोग जो मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। तुमने बाहर से देखा है, मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ अंदर से। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। हर शख्स नहीं होता हर बात के काबिल, और वो रब जब कुन फरमाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। काश कि हम देख सकते, जो है वो काफी है। जो खो जाए वो अजर से पहले की आजमाइश होता है। इंसान जब परेशान होता है तो उसकी तरफ दौड़ता है जिसकी मोहब्बत पर उसको यकीन होता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। मेरे सुकून के लिए इतना ही काफी है कि जब मेरा दिल कहता है कि अल्लाह है ना। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा कि आप भी अपनी बारी का इंतजार करें। दुआओं का हिस्सा तो सब बन जाते हैं, मगर हमेशा दुआओं का हिस्सा बने रहना किसी के बस की बात नहीं। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। जिन चीजों को तुम समझ नहीं सकते, उनका फैसला अल्लाह के सपुर्द कर दो। कितने अजीब हैं ना लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। जो इंसान अल्लाह को नाराज करता है वो दुनिया में जलील और रुसवा हो जाता है। हालात इंसान को वो बना देते हैं जो कभी था ही नहीं। वो दुनिया में 2% लोग ही धूप पर जलते हैं, बाकी एक दूसरे से बेहतर की तमन्ना थी, बेहतरीन से नवाजा गया। सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ है। जिंदगी कई किस्म के इंसान के साथ गुजारी जा सकती है, सिवाय बेकदरे लोगों के। और जब अल्लाह राजी होता है तो बात बन जाती है, काम हो जाते हैं, वक्त बदल जाता है। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है। दुरूद शरीफ पढ़ा करो, जिंदगी परेशानियों और मुसीबतों से पाक हो जाएगी। खुदा के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। सबसे मजबूत रिश्ता इंसान और अल्लाह का है। बदला ना लो, बस अल्लाह पर छोड़ दो। आग में वो आग कहाँ जो लोग बातों से लगाते हैं। ये दुनिया है, यहाँ धोखा कसरत से मिलता है। मकान तो कच्चे थे पर पक्की थी दोस्तियां। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है। हकीकत अक्सर तल्ख होती है। कुछ सदाएं बहुत खामोश होती हैं। एहसास ना हो तो बातें बेकार हो जाती हैं। खूबसूरती फजूल है अगर हया ना हो। जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। वो जाया नहीं करेगा तेरी दुआ, जरा इंतजार कर। जब वो राजी होता है तो हर चीज वसीला बना देता है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश का ये आखिरी मकाम हो। खामोशियां कभी कभी बहुत तफसील से
जवाब देती हैं। दिखावे की हद तक हर शख्स बेहतरीन है। ये दुनिया की जिंदगी सिवाय फरेब के कुछ नहीं। सब्र करें, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। लोगों के गुलाम मत बनो। जब अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है, नमाज गुनाहों को मिटा देती है और अल्लाह अपने बंदे को देख रहा है। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आकर ही रहेगी। अल्लाह लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। जो दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो और जो बात किसी के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। लोग दीवार के उस पार नहीं देखते, शक्ल अच्छी हो तो किरदार नहीं देखते। लोग आजकल खुशियां नहीं सबक देते हैं। रब की मोहब्बत तो वो है जिसकी कोई हद नहीं। साथ होना इश्क नहीं, साथ देना इश्क है। जिंदगी उन्हीं की रंगीन होती है जो रंग बदलना जानते हैं। जिस खास के लिए आप खास नहीं उसे आम कर दीजिए। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। अच्छे नहीं सच्चे बनो। मुकद्दर तो सबके होते हैं पर हर मुकद्दर में मोहब्बत कहाँ होती है। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन जिंदा हैं। कुछ खताएं माफ नहीं की जाती, सोच समझ कर दिल तोड़ा करो। सफर रोज का है और जाना कहीं भी नहीं। साथ सब हैं मगर आरजी, जितना मर्जी पढ़ लो जाना कब्र में ही है। जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ जाएं बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। गलत फहमी थी कि अपने बहुत हैं, दुआ तो बदल देती है मुकद्दर भी। अल्लाह ताला पर यकीन हर बुलंदी और कामयाबी की सीढ़ी है। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ो लेकिन दुनिया के लिए नमाज न छोड़ो। घबराओ नहीं, खुदा की मदद यकीनन करीब है। जिनको अल्लाह से मांगने की आदत हो वो कभी जिंदगी में खाली हाथ नहीं रहते। दर्दनाक तब होता है जब उसे सहने की आदत पड़ जाती है। कबूलियत में वक्त लग रहा है तो यकीनन अल्लाह को आपका रोना पसंद आ गया है और एक दिन तुम भी अल्लाह के सिवा किसी को अपना न पाओगे। हाथ की लकीरों पर नहीं, हाथ को बनाने वाले रब पर यकीन होना चाहिए। नसीब लिखने वाला जब अल्लाह है तो लोगों का और दुनिया का डर कैसा। अल्लाह की मोहब्बत की एक मिसाल तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा है। कुछ बातें समझने पर नहीं, खुद पर बीत जाने के बाद समझ आती हैं। दोस्ती और रिश्ते की गहराई का एहसास अल्फाज से नहीं, बर्ताव और रवैये से होता है। हमें जिस सबक को पढ़ने की जरूरत सबसे ज्यादा है वो सबक इंसानियत है। जिंदगी का एक बड़ा सबक ये भी है कि शौक की उम्र में सब्र सीख लिया जाए। गम देने वाले नहीं, गम भरने वाले बनो। बीमारियों की तरह कुछ लोग भी नाकाबिले इलाज होते हैं। जरूरत तोड़ देती है बेनियाजी को। अगर ना होती कोई मजबूरी तो हर इंसान खुदा होता। लोगों के चेहरों पर मत जाएं, चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में ऐसा अजनबी बना देती है कि लोग पहचानते हुए भी इनकार कर देते हैं। अपने जज्बात को कुचलकर दूसरों के जज्बात का एहतराम करना यही मंजिल है जहां इंसानियत तकमील पाती है। आजिज़ी इंसान के वकार में इजाफा करती है। दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। दुआ करें कभी गरूर ना आए। इंग्लिश बोल लेना बाशऊर होने की सन्नत नहीं। हमारी सल्तनत में खूबसूरती नहीं किरदार के सिक्के चलते हैं। कुछ ना समझना गलत समझने से बहुत बेहतर है। कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ राज आप और अल्लाह के दरमियान ही अच्छे लगते हैं। ना शुक्री में घिरे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लफ्जों की जंग से परहेज करो। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। आपका बेहतरीन उस्ताद आपकी आखिरी गलती है। गुस्सा वो वाहिद हराम चीज है जिससे पीना हलाल है। अपनी अकल और दूसरों की नौकरी हर किसी को अच्छी लगती है। दुनिया आराम गाह नहीं इम्तिहान गाह है। दूसरा मौका कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं।
آپ کس کے لیے کتنے اہم ہیں یہ الفاظ نہیں رویے بتاتے ہیں۔ پہلی محبت ہمیشہ غلط انسان سے ہوتی ہے۔ یقیناً ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ بہت پڑھ لیا زمانے کو، اب خود کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ ہمیشہ سبق دیتے ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں سادگی لے کر۔ زمین پر سب سے طاقتور فتح انصاف ہے۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ میں خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں۔ تم غیروں کی باتیں کرتے ہو، ہم نے اپنوں کو بھی آزمایا ہے۔ جو لوگ منہ پر نہیں بول سکتے وہ سٹیٹس لگا کر تانے دیتے ہیں۔ جو لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ با ہمت لوگ وہ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو خدا سے عشق ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے تو بولنا کم اور خاموش رہنا سیکھو۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ جن کو فرق نہیں پڑتا ان کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ خوشیاں ہمیشہ پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ زندگی صبر کے دریا میں بہا دی ہم نے۔ بیکاری میں انسان کو عشق بازی یاد آتی ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل، روزے دار، حکمران اور مظلوم۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس ہی نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ محمد لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ جنت والے ہر جمعے کو اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے، اور اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، در حقیقت جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو پھر کسی بات کی طلب نہیں رہتی۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ حد سے زیادہ تمنا انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی رونے نہیں دیتے۔ زیادہ انڈے کھانے سے انسان کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا بہت اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دروازے پر تمہاری بہن رو کر چلی گئی تو اللہ پاک تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گا اور اپنا رزق بھی تم سے چھین لے گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ کبھی کبھی تقدیر کسی کی دعا کے انتظار میں ہوتی ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو امید صرف اللہ سے رکھو۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو جاتی ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟
آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ کتابیں صرف علم دیتی ہیں پر ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ نہ نماز جیسی کوئی عبادت ہے اور نہ ہی قرآن جیسی کوئی کتاب ہے۔ سکون نماز میں ہے اور نصیحت صرف قرآن میں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا۔ جو رب کی یاد میں روتے ہیں وہی لوگ سکون میں ہوتے ہیں۔ دل سے توبہ کر لو، وہ رحیم ہے، مان بھی جائے گا۔ کوئی سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے، بس تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس دنیا کے خالق کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہوتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ راتوں کی دعائیں مقدر سے جیت جاتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو، ایک خاموش گفتگو اللہ سے بہت سی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ اللہ صرف امید نہیں بلکہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ دل کا بھی غسل کیا کرو توبہ کے پانی سے۔ زندگی ہر زندہ انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے طلع کی بھیک نہ مانگیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک الفاظ آپ کی شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وفادار شخص آپ کا باپ ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ والدین سے محبت کرو، زندگی میں وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ دن کی پہلی فتح یعنی کامیابی فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ جو چھوڑ جائے راہوں میں وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ باپ پر گئی ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی جانتی ہیں۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نا تو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ وقت تو آنے دو، یہ سب کہیں گے کہ یہ ہمارا فلاں لگتا ہے۔ جنت تو سب مانگتے ہیں مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ راستے مقرر ہیں، منزلیں خدا جانے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے رشتے رکھتے ہیں۔ باکمال لوگ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھو وہ دوست تھا ہی نہیں۔ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر خود ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے کیونکہ پاک کو ہی پاکیزہ ملتا ہے۔ کالی بلی سے ڈرتے ہیں لوگ لیکن اپنے کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اچھے بنتے جاؤ گے، استعمال ہوتے جاؤ گے۔ اگر تم عبادت نہیں کر سکتے تو پھر گناہ بھی نہ کرو۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ کچھ چیزیں آپ چاہ سکتے ہیں مگر پا نہیں سکتے۔ دل کی توبہ حرام چھوڑنے میں ہے۔ جس نے خواہش نفس کو چھوڑا وہ مراد پا گیا۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے انسان کی۔ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر ایک کا امتحان لینے کی اور ایسے لوگ آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ کسی کو تکلیف نہ دو، اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ بن جائے گا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ ٹوٹی ہوئی دوستی
जुड़ सकती है मगर साबित नहीं हो सकती। जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। हकीर से हकीर पेशा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। दर्द इंसान नहीं देता बल्कि इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दर्द देती हैं। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में एक काम किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज करना है जो सोच में रच सा गया हो। किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके अल्फाजों को सुनो, और किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके अमाल को देखो। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। मोहब्बत बोझ नहीं होती पर इंसान को झुकना सिखा देती है। हमेशा सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त के। इंसान बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जो शख्स अल्लाह से मदद चाहता है अल्लाह उसकी मदद हर हाल में करता है। एक ही जुमला इंसान की तरबियत के लिए काफी है कि अल्लाह देख रहा है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत हारना। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम क्यों नहीं देखते। अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मेरा रब दुआएं कभी रद्द नहीं करता। इंसान खुश रहने के लिए कमाता है और कमाने के लिए अफसोस ज़दा रहता है। जो आपकी खामोशी को न समझ पाए वो आपके अल्फाजों को कभी नहीं समझ पाएगा। मजाक की कसरत दुश्मनी को खींच लाती है। दुखों में आप अकेले होते हैं और सुखों में ये दुनिया सारी आपके साथ होती है। इतना आसान ना बनाओ खुद को कि जो देखे समझ जाए। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है मगर अपना कौन है ये वक्त बताता है। चुप रहना गरूर नहीं होता बल्कि ये सब्र होता है। दुआ एक वायद ऐसी चीज है जिसको तकदीर पर फजीलत है। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि सबको सब नहीं मिलता और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना कोई मददगार। यकीन मानो अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। बस अपने रब के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखो, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो। अल्लाह तो निगाहों की खयानत को भी जानता है। आप मुखलिस हैं यही काफी है, अजर तो अल्लाह देगा। अल्लाह कहता है हर इंसान को मौत का मजा चखना है। रिश्ते निभाने के लिए होती हैं, आजमाने के लिए नहीं। बेटियों को जवान होने से पहले ये 4 बातें जरूर बताएं। नंबर 1, उन्हें बताएं कि सड़क पर अपनी सहेलियों के साथ मजाक मत करें। नंबर 2, उन्हें बताएं कि खास तौर पर घर से बाहर बाजार में किसी दुकान पर बुलंद आवाज में कहका मत लगाएं। नंबर 3, अपनी बेटियों की सोबत का खास तौर पर ख्याल रखें। नंबर 4, उन्हें बताएं कि लिफ्ट में कभी किसी गैर मर्द के साथ न चढ़ें। एक हकीकत ये भी है कि कुछ लोग आपसे सीख कर ही आपको सिखाते हैं। किसी को दुख मत पहुंचाओ क्योंकि अमल पलट कर आता है। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से मिलेगा। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। सब्र एक ऐसी चाबी है जो बहुत सी मुश्किलों के हल के दरवाजे खोल देती है। जिसने झूठी कसम खाई उसके घर से बरकत उठ जाती है। कभी कभी जिंदगी की हकीकतों को कबूल करने के लिए मजबूर नहीं बेबस होना पड़ता है। मासूम अफराद हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। लोग हासिल तो कर लेते हैं मगर कदर नहीं करते। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया लौट कर नहीं आती। अपने किरदार को अच्छा जरूर बनाएं मगर दूसरों के किरदार पर गंदगी ना उछालें। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। हर चीज सही वक्त पर आपके पास आती है, सब्र करें। 2 इंसानों का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे इंसान की वजह से खत्म होता है। सब्र करो फिर सब्र के करिश्मे देखो। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, वहां हर रोज एक एहसास दफन होता है। इखलाक का इम्तिहान
तल्लक खत्म होने के बाद शुरू होता है। सब एक जैसे होते हैं मगर उनके डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तमाशा ये भी है कि तमाशाई अपने हैं। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला खुद रास्ता बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। याद रखो, फतह ताकत की नहीं सदाकत की होती है। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान चुप हो जाती है। अल्लाह से उम्मीद लगाने वाला कभी हारता नहीं है। सजदा सब्र और सजदा शुक्र में सिर्फ नियत का फर्क होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों की दवा है। इंसान को खुदा तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हुआ हो। लोग लिबास देखते हैं, इतने मसरूफ हैं कि अखलाक देखने का वक्त ही नहीं मिलता। तन्हाई बेहतर है झूठे लोगों से। जिसका दिल साफ होता है अक्सर लोग उसी को गलत समझते हैं। जो नजरअंदाज करे उसे नजर आना छोड़ दो। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, इसका सही अंदाजा आखिरत में होगा। बुरे काम में कामयाबी से बेहतर अच्छे काम में नाकामी है। जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होता, किसी का काश और अगर रह ही जाता है। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातों को समझ लेना ही बेहतर होता है। दो घूंट अल्लाह को बहुत पसंद हैं, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। इतनी तकलीफ सच बोलने में नहीं होती जितनी तकलीफ सच सुनने में होती है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। दिल एहसास के बगैर पत्थर है। जब भूख दरवाजे पर दस्तक देती है तो अकीदे खिड़कियों से भाग जाते हैं। जहां यकीन हो वहां शक नहीं किया करते। एहसास के तर्जमे नहीं होते, उसे महसूस किया जाता है। थोड़ी सी परवाह रिश्ते कायम रखती है। उम्मीदें खुदा से वाबस्ता हों तो टूटा नहीं करती। वक्त लगता है वक्त गुजारने में भी। जिंदगी रंगीन सिर्फ अपनों के होने से होती है। बंदा अगर मुखलिस हो जाए तो लोग पागल कहते हैं। एक गलत इंतखाबात आपके चेहरे की रौनक छीन लेता है। चेहरे पढ़ने लगोगे तो दोस्तियां टूट जाएंगी। बहुत मुश्किल है रास्ते जिंदगी के। इंसान में इंसान के सिवा कुछ न ढूंढो। सबसे मजबूत तल्लक बंदे और रब का तल्लक है। अल्लाह पर यकीन हर बुलंदी की सीढ़ी है। इंसान जब रो न सके तो वो लिखता है। अल्लाह जिसे चाहता है खास कर देता है। आज के इस दौर में लोग माचिस से नहीं अब जबान से आग लगाते हैं। बाज दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले को करना पड़ता है। जद्दोजहद जितनी सख्त होगी कामयाबी भी उतनी शानदार होगी। वक्त बदल देता है, आदतें भी और ख्वाहिशें भी। तन्हा और अकेला हो जाना नजरअंदाज होने से बेहतर है। तकलीफ तब होती है जब आपको लहजों की समझ आती है। गलत फहमी थी कि अपने बहुत हैं, दिलों पर अल्फाज नहीं लहजे असर करते हैं। हमने छोड़ दिए वो लोग जिन्हें जरूरत थी, कदर नहीं। मोहब्बत के खात्मे को एक बदलता हुआ लहजा ही काफी होता है। हर इंसान औकात के मुताबिक डसता है। हकीकत में इंसान अपनी ही लगाई हुई उम्मीदों से धोखा खाता है। कुछ अधूरी ख्वाहिशों का नाम जिंदगी है। जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। हर जीतने वाले के पास जिंदगी नहीं होती। कभी कभी खामोशी बहुत सारे भरम रख लेती है। किसी को सोचते रहने से कोई अपना नहीं हो जाता। वक्त के पास हर मर्ज की दवा नहीं होती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें। ये असूल हमने बना लिया है, ना मिला करो ना गिला करो। बगैर मतलब के कोई साथ नहीं चलता। मनपसंद शख्स हर मर्ज का दवा होता है। इसके लिए मुखलिस रहो वही मुनाफिक निकल जाता है। अच्छे लोग हमेशा खुशी देते हैं और बुरे लोग सिर्फ सबक देते हैं। जब नए लोग मिल जाएं तो पुराने लोग बेकार हो जाते हैं। कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसके लिए अल्लाह ने आपकी राय नहीं मांगी।
जब किस्मत ही खराब हो तो तवीज की बजाय गले मौलवी भी बांध लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्र करने से सब्र आ जाने तक का सफर तकलीफ दे होता है। अल्लाह तो हमेशा से पास है, दूर तो हम चले जाते हैं। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी ज्यादा की जाती है। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को जवाल है। सोच अगर अच्छी हो तो खुदा तकदीर बदल देता है। भरोसा किसी भी हिस्से का सबसे अहम हिस्सा है। मोड़ आ जाए तो मोड़ मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। लफ्जों के भी ज़ायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करो। नमाज पढ़ने को दिल ना करे तो सोचा करो कि क़यामत वाले दिन अगर मैं नाकाम हो गया तो मेरा क्या बनेगा। दूसरों की मदद के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ताकतवर हों या अमीर हों, सिर्फ रहम दिल होना भी काफ़ी है। जब नीयतों से पर्दा उठ जाए तो लहजे से लिहाज ख़त्म हो जाता है। लोग बताते तो बहुत कुछ हैं, मगर जो रवैया बताता है बस वो सच होता है। अल्लाह कहता है कि मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं ये दुनिया के सहारे। देर से सही मगर अल्लाह देता ज़रूर है। आजमाइश के पीछे कितना बड़ा सिला होता है, अगर तुम ये जान लो तो कभी शिकवा ना करो। ज़िंदगी सिर्फ चंद दिनों के लिए और अच्छा काम हमेशा के लिए होता है। लोगों की नज़र में खामोशी अना है और अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम नहीं होते, बदल जाते हैं। जानवर अपने मालिक को पहचानता है मगर इंसान अपने खुदा को नहीं पहचानता। अक्लमंद कहता है मैं कुछ नहीं जानता और बेवकूफ़ कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। माफ़ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। इंसान अपने अंदर की जंग लड़े तो बाहर की जंगों का सामना कम ही करना पड़ता है। जो हक से मुंह मोड़ता है वो तबाह हो जाता है। किसी इंसान का मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाना चीख कर रोने के बराबर होता है। कभी हम वक्त को और वक्त कभी हमें ज़ाया करता है। दोनों एक दूसरे से बदला ज़रूर लेते हैं। बड़ी बुलंदियां जल्दी नहीं होती, लेकिन कोशिश के साथ मुश्किल को भी आसान बनाया जा सकता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना तेरे खुदा का काम है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और वो आप खुद हैं। मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देता है। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बनाती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम लहजा। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवाओं को रास्ता देना ही पड़ता है। तंग जगह से निकलने का वैध रास्ता ये है कि आप अपना रास्ता खुद ईजाद करें। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। जो लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अपने कल को बेहतर करने के लिए अपने आज को बेहतर करो। अपनी जबान को काबू रखने वाला हमेशा फायदे में रहता है। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज ना हुआ करो। आंख वाला वो है जो अपने आप को देखे। एक कब्र पर एक अजीब जुमला लिखा हुआ था, मैं अहम था, यही वहम था। नफरत वाले दिल में अल्लाह नहीं आ सकता। जो चीज़ इख्तियार से बाहर हो उसका फैसला वक्त पर छोड़ दो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझें। जब लोग रास्ता बदलने का फैसला कर लेते हैं तो रास्ते कम कर देते हैं। किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का रास्ता पूछकर भी पहुंच जाते हैं। अल्लाह जालिम लोगों को कभी हिदायत नहीं देता। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, बाकी सब उनको दीन सिखा देगा। नस्ल अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी है जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। रिश्ते में सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग रिश्ते में आपसे हिसाब किताब मांगते हैं।
घर सोना चांदी से नहीं, हमेशा इखलाक से आबाद होते हैं। रात की खामोशी में जब खामोशी से दुआ मांगो तो लगता है कि अल्लाह सिर्फ मेरा है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। हमेशा खुश रहा करो। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। सब्र जन्नत में शहद की नहर है। जिस आदमी की ज़बान खराब हो जाती है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। खुद का मुकाबला किसी से ना करो, तुम जैसे हो बेहतरीन हो। अगर अल्लाह मांगने पर देता है तो गरूर करने पर छीन भी लेता है। मतलब का वजन होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मतलब के बगैर राब्ते में रहना हर किसी की बस की बात नहीं। आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हैं। असली मर्द हालात से लड़ते हैं और कमजोर मर्द घर की औरतों से। याद रहे कि जब तक उजाला ना हो तो लोग जुगनों को भी कीड़ा कहते हैं। जिंदगी को सादा मगर ख्यालात को बुलंद रखो। रिश्ता हमेशा वही कामयाब रहता है जो दिल से जोड़ा हो, जरूरत से नहीं। इबादत का रुख मक्का है और मोहब्बत का रुख मदीना है। तल्लक बाकी ना रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए। मुझे लोगों को नहीं बल्कि अपने अल्लाह को राज़ी करना है। दुनिया में कोई काबिल भरोसा है तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि इखलाक और उसका ईमान है। खूनी रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़बानी सुनने को मिलती हैं। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। गरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफी है। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। मरने के बाद हम भी अच्छे हो जाएंगे। कभी कभी आंखों से ज्यादा दिल रोता है। फजूल उम्मीदें बेवकूफों का खजाना है। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं मानती। लालची बीवी से बुरा साथी कोई नहीं। पुख्ता इरादों के जरिए सुस्ती का मुकाबला करो। तारीफ गालियों की इब्तदा है। कीमती होकर मुफ्त हो जाना दरवेशी है। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसे खाली कर देता है। हर इबादत की कज़ा है लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं। किसी गरीब को तंग मत करो। तेरी ताकत पैसा है और उसकी ताकत अल्लाह है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से खामोश हो जाता है। औरत की मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाए तो मर्द बेवफा हो जाता है। मुश्किल बहुत छोटी है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इंसानियत कज़ा करके लोग मुसल्ले उठाए फिरते हैं। गुस्से के वक्त इंसान के इखलाक का सही पता चलता है। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। रिश्तों की खुराक सिर्फ और सिर्फ साफ दिल है। तल्लक रखना कोई कमाल नहीं, तल्लक निभाना कमाल है। लोग टूट जाते हैं, अनाएं कायम रहती हैं। कब्र जितनी पुरानी हो जाए मगर फातिहा पढ़ने वालों के लिए दुख ताज़े ही रहते हैं। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। यतीम होना बहुत आसान है लेकिन यतीम होकर जीना बहुत मुश्किल है। दिखावे की हद तक हर बंदा बेहतरीन है। जो खामोश रहा उसने निजात पाई। वक्त चुपचाप हमारी कब्रें खोद रहा है। हमेशा इंसान अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन खुद देख अच्छा इंसान नहीं बनता। दुश्मन के उस सुराख में दाखिल ना हो जिसका तुम्हें पता ना हो कि बाहर कैसे निकलना है। आदिल अपना रास्ता खुद बना लेता है। वो मत जानो जो तुम जानते हो, वो जानो जो तुम नहीं जानते। दुश्मन ही तुम्हें शेर की तरह बहादुर बनाता है। अपने अंदर सीधी राह का होना अच्छी बात है। इश्क मोहब्बत करने वाला ही दुनिया का बोझ उठा सकता है। इंसान जितना ही अमीर क्यों ना हो जाए दुख बेच नहीं सकता और खुशियां खरीद नहीं सकता। अगर ख्वाहिश हासिल से ज्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। ये जमाना ही सिखाता है कैसे रहना है जमाने में।
बोलना चांदी है और खामोश रहना सोना। जहालत हमेशा अंधी होती है। इंसान का मकाम जो भी हो, उससे गरूर नहीं करना चाहिए। हम दूसरों को समझते हैं लेकिन खुद को नहीं समझते। मौत एक इख्तिताम नहीं है, मौत एक रास्ता है। माफी से पहले दिल की सफाई जरूरी है। जिक्र के अलावा जबान की तरबियत का और कोई तरीका नहीं। इंसान को मरने से पहले मौत ही बचाती है। ये दुनिया हर किसी को लूट लेने वाली धोखेबाज है। अल्लाह जिसके साथ होता है उसी की जीत होती है। हम जवाब ना देकर जवाब ही तो देते हैं। आज़ादी बातों से नहीं बल्कि जंग से होती है। 3 चीज़ों को कभी ज़हर मत करना वरना ज़िंदगी में नाकाम रहोगे। नंबर 1, अपना राज। नंबर 2, अपनी खामियां और कमजोरियां। नंबर 3, अपना जरिया माल। 2 चीजें बड़ी अहम हैं, एक अल्लाह का डर और एक अल्लाह का दर। ठोकर वही खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता। इंसान ने आसमान के रास्ते दराफत किए हैं लेकिन दिल का रास्ता नहीं मिला। सोच की तारीखी रात की तारीखी से ज्यादा खतरनाक है। जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जबान से निकली हुई कोई दुआ रद्द नहीं होती। जिंदगी की महफिल में जब सब्र आता है तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़बां कर दिया करो, ये भी सदका है। नज़ारा इल्म का नहीं नजर का मोहताज है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर जाग सके। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे मुस्कुराता दिल नहीं होता। गुनाह के दरमियान मौत का ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिल जाना, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। सब्र अल्लाह पर यकीन की आखिरी हद है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। जब तक खुद पर नहीं गुजरती एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। हर वो चीज जो खुदा से गाफिल कर दे दुनिया कहलाती है। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। इज्जत देना तरबियत होती है, कमजोरी नहीं। जिक्र अगर अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। वक्त को वक्त पर आने दो, फिर वक्त का मजा आएगा। तल्लक मुख्तसर ही सही लेकिन मुनाफकत से पाक होना चाहिए। हमेशा झूठी बातों से परहेज करें। तुम रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दो, ये भी सदका है। अच्छी चीजों में खुद को मसरूफ नहीं करोगे तो बुरी चीजों में खुद ब खुद मसरूफ हो जाओगे। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं, अमल इसका फल है। उंगलियां हमेशा वही उठाते हैं जिनकी औकात नहीं होती नजर मिलाने की। नफरत से आज तक कोई किसी को नहीं बदल सका। मोहब्बत से कायल करना सीखो। गलत सही का फैसला खुदा पर छोड़ दो। तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। दिलों में फर्क आ जाए तो तल्लक निभाए नहीं जाते, घसीटे जाते हैं। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। कुछ रिश्तों की खातिर अगर हम अपनी जान भी कुर्बान कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इबादत का बेहतरीन वक्त जवानी है। दुआ का कोई रंग नहीं होता मगर ये रंग जरूर लाती हैं। हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है लेकिन अपनी गलती नहीं मिलती। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है लेकिन अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से। इज्जत दो लेकिन इतनी ना दो कि इज्जत ही ना रहे। रोकर मांग लिया करो अपने रब से, उसे किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। अल्लाह से तल्लक आपका एहसास से तन्हाई को कम कर देता है। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखो, वो रहमान है, रद्द नहीं करता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी कर सकता है। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत करो।
کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ دوسروں کو اپنے دکھ بتانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ وہ کن کہتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ جتنی تمہاری زبان پاک ہوگی اتنی ہی زندگی صاف ہوگی۔ اداس لوگوں کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جب تمہیں یہ لگے کہ تم پر مصیبتیں اور تکلیفیں زیادہ ہیں تو نماز پڑھ لیا کرو۔ جب ضمیر ملازمت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ بے شک میرا اللہ آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش رکھی ہے، کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے۔ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، انسان کو بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ خدا تو ہمیشہ پاس ہے، دور تو ہم خود چلے جاتے ہیں۔ جو دل محبت کا عادی ہو جائے اسے سختی سے کی ہوئی ہر بات پتھر کی طرح لگتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، اگر نہ بھی کیا تو بہترین کرے گا۔ توڑنے والے تو ہزار بیٹھے ہیں پر جوڑنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان اگر زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس کے اندر ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ ماں کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان دل میں ہوتی ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ چپ گہری ہو جائے تو مار بھی دیتی ہے۔ جس میں برداشت کرنے کی قوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان لفظوں میں اسے آج کہتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے، اس پر یقین رکھو تو اندھیروں میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دن عذاب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ گناہوں کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کو دوست رکھو جو نیکی کر کے بھول جائے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ نیکی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ جب گناہوں کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور اس کا ظلم اسے ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کا دوست وہی ہے جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ موت سب کو آتی ہے، جینا کسی کسی کو آتا ہے۔ سورج کہلانے کا شوق ہو تو روشنی پیدا کرو۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دیتا ہے۔ اپنے نفس کو مارو، روح جیت جائے گی۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو جس تکلیف سے گزرتا ہے بس وہی اس تکلیف کو جانتا ہے۔ جب درد کسی اور کا ہو تو نصیحتیں اچھی دیتے ہیں لوگ۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے۔ انسان کچھ تعلق کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ بہترین دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ حرام ہر صورت میں حرام ہوتا ہے، چاہے وہ سور کی شکل میں ہو یا سود کی۔
जिंदगी बर्फ की तरह है, उसे नेक कामों में गुजारो, पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। जिंदगी एक हीरा है, इसे तराशना इंसान का काम है। जो इंसान अपना वक्त जाया करता है वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। दुनिया में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिन्होंने अपने उस्ताद का एहतराम किया होता है। सच्चा आगाज हमेशा सच्चे अंजाम पर खत्म हो जाता है और झूठा आगाज हमेशा झूठे आगाज पर खत्म होता है। जिसकी रात बीदार हो जाए उसका नसीब जाग उठता है। परेशानी से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि इंसान अपने खालिक की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हदीस के मुताबिक वो औरत जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है उसका शौहर जल्दी अमीर हो जाता है। फिक्र इंसानी जिंदगी की दुश्मन है। अपने ख्यालात को अपना जेल खाना ना बनाओ। दुनिया में सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। इंसान को अपनी मौत तक जद्दोजहद करनी चाहिए। जिंदगी हर इंसान को अजीज है, लेकिन बहादुर इंसान के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हारा अकल ही तुम्हारा उस्ताद है। मजबूत इरादे माँ बनाती है। आशिक पर मौत हराम है। दिल एक ऐसी चीज है जो हर अमीर के पहलू में नहीं होता। दूसरों के सारे जिंदगी बसर करना कुरान के रूह से काफरी है। जो मसाइल इंसान हल ना कर सके कुदरत उन्हें हल कर देती है। कौमें फिक्र से मारूम होकर तबाह हो जाती हैं। घर में गुस्सा होना गोया उसे वहरान करना है। बाप की दौलत नहीं साया ही काफी होता है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने पर अल्लाह ताला माफ कर देता है। इंसान के अंदर शर्म व हया एक फितरी जज्बा है। अकल से बेहतर कोई रफीक नहीं। मर्द कामिल तो वही है जो दुश्मन को दोस्त बना सके। अगर तुम नेक बनना चाहते हो तो नेकों की सोबत इख्तियार करो। अल्लाह ताला एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला की इबादत करो और खुदा तरसी के कानून पर अमल करो। बदी से दूर रहो। बुरी सोबत शहर से भी ज्यादा कातिल है, इससे बचो। खुदकशी कबीरा गुनाह है। मौत का फरिश्ता सिर्फ बदन खत्म करता है, रूह हमेशा कायम रहती है। मौसम बहार हर जमाने में मौजूद रहता है। मुसीबत में सब्र करना और शोर न करना, गुस्से को ज्यादा न करना, इस पर काबू रखना। अपने भाई से बिला वजह नाराज मत हो। अपने हलाल माल से सदका दो। अगर तुम दूसरे लोगों के कसूर माफ नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा। गुनाहों से बचना इबादत पर फख्र करने से बेहतर है। अल्लाह ताला के खौफ से उम्र में इजाफा होता है। जिसको गुस्सा देर से आता है बहुत ही अक्लमंद है। कामयाबी एक बार आती है मगर मुसीबत बार बार आती है। मीठे बोल गुस्से को दूर करते हैं। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का पकड़ा कोई नहीं छुड़ा सकता। ईमानदारी मुआशरे की फलाह के लिए जरूरी है। अक्लमंद वो है जो कम बोले ज्यादा सुने। वालिदैन की खिदमत करो और उनके हकूक जरूर अदा किया करो। वालिदैन की खिदमत करो और उनके हकूक जरूर अदा किया करो। जिंदगी बगैर मोहब्बत के मुसीबत है और बगैर अकल के हैवानियत है। खुद कर्ज लोगों से दोस्ती और प्यार करने का मतलब अपने आप को जलील करने के सिवा और कुछ नहीं। जो शख्स वादा खिलाफ है वो सारी कौम के लिए वजह शर्मिंदगी है। जैसी मोहब्बत आप अपने माँ बाप से करेंगे वैसी ही मोहब्बत आपकी औलाद आपसे करेगी। अगर जन्नत की तलब है तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करो ताकि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे और दरगुजर करना सीखो। अपने वालिदैन की बातें गौर से सुनो ताकि दुनिया वालों की बातें ना सुननी पड़े। खूबसूरती का तल्लक नजर से कम और दिल से ज्यादा होता है। खुश इखलाक इंसान सबसे ज्यादा बाइज्जत है। कानून की सबसे अच्छी तारीफ ये है कि वो सबके लिए यकसा हो। अपनी जबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। जिसका राब्ता खुदा के साथ हो वो नाकाम नहीं, नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हों। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। बाकमाल लोग दूसरों के ऐब नहीं देखते। दुश्मन से बचो लेकिन दोस्त से उस वक्त बचो जब वो तुम्हारी तारीफ करने लग जाए। लंबी उम्र पाने के लिए ऐसा जीना जरूरी है। अगर रोजी सिर्फ अकल से कमाई जाती तो सारे बेवकूफ भूखे मर जाते।
دنیا ایک سٹیج ہے جس میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جو شخص علم کا ذوق نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو مت کرو۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ مگر اس پر دوبارہ اعتماد کر کے بے وقوف مت بنو۔ سب سے بزدل وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے۔ موت انسان کو مار سکتی ہے لیکن کردار کو نہیں۔ جس نے بھی کچھ حاصل کیا قسمت سے حاصل کیا۔ جو آدمی نیک سلوک سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے کہ جب دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔ علم دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ جب تم کسی کو نظر انداز کرو اور وہ اس کا بدلہ وفا دے دے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں خود سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ یقین زندگی میں ہر چیز کو ممکن بناتا ہے اور پیار ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ نابینا وہ نہیں جو آنکھوں سے محروم ہے، نابینا تو وہ ہے جسے اللہ کا فضل دکھائی نہیں دیتا۔ شکوے کی دکان پر مصیبت کا کاروبار چلتا ہے۔ جو امیدیں چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا سوچو کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ زبان ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اس کا نام شیطان ہے۔ سب سے مہنگا سبق زندگی سکھاتی ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ زندگی میں مشکل بات اپنی پہچان کے لمحات ہوتے ہیں۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ 3 لوگوں کی نماز تہجد کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 2 جو اپنی نظر کی، زبان کی اور کانوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ نمبر 3 جو ناپاک حالت میں ہوتا ہے۔ کسی کی کمزوری کو اس کی نرمی مت سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ کھلے عام دشمنی کر لو لیکن دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کے سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ بے شک اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اسے اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی انسان خود بنا لیتا ہے۔ ہم اپنی غلطی کے لیے بہترین وکیل اور دوسروں کی غلطی کے لیے بہترین جج ہیں۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی سے بھروسہ نہیں رکھتے۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔ رفتار وہی بہتر ہے جس میں سانس نہ پھولے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔